शुरुआत करते हैं कांग्रेस तो। खड़ियाल साहब, इतराज क्यों ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਕਿਉਂ? ਨੰਬਰ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਫੋਰ ਸਮਥਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਸੌਰਟ ਹੈਪਨਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? तो इस चीज दे फेवर दे विच क्यों बोल रहे हैं भगवंत मान साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो ट्वीट करके ये कहेंगे उन्हां दे तर्ज ते सानू भी जमीन दित्ती जावे, मतलब वो एडमिट कर रहे हैं भी जो हो रहा वो सही है ते सानू भी ये चीज दित्ती जावे। इंप्लाइडली ਇਹਦਾ मतलब है कि सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है ਜਦੋਂ कि हक पंजाब चंडीगढ़ दी कोई भी बिल्डिंग है, चंडीगढ़ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚ ਲਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ BBMP ਇਸ਼ੂ, ਫਿਰ ਸਿਟਕੋ ਇਸ਼ੂ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ 6ਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਵੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਤੀਜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਰਸ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 30 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਮਦਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਤਰਈ ਸਲੂਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਪਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤਰੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਅੱਜ ਹਰਿयाणा अपनी बखरी विधान सभा की इमारत बनाने जा रहा है तो चंडीगढ़ च क्यों? देखिए शुक्ला जी, पहली बात तो ये है कि मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता जो पंजाब से यहाँ पे बातें कर रहे थे, कुछ लोगों की राजनीतिक मजबूरियां बन गई, कुछ लोगों की व्यक्तिगत मजबूरियां बन गई कि बिना तथ्य को देखे, बिना सच्चाई को जाने उल जुलूल बात करना, झूठ का प्रचार करना। ये कह रहे हैं कि साहब देखिए हरियाणा अगर कोई प्रपोजल भेजता है तो उसको केंद्र तुरंत स्वीकार कर लेता, लेकिन पंजाब अगर भेजता है तो तुरंत स्वीकार नहीं करता। इनको शायद ये जानकारी नहीं है जिस विधानसभा की बात हो रही है, 1 साल पहले 28 जून 2021 को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था। इनको शायद ये जानकारी नहीं है कि 1 साल का वक्फा लगा अपनी बात को रखने का, अपने फैक्ट्स रखने का, अपनी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको समझाया। और जो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 का जिक्र कर रहे हैं, ये यहाँ पे कह रहे हैं बैठ के देखिए उस एक्ट के मुताबिक अगर आपको कुछ करना है तो आपको कंसल्ट करना होगा। ये मुझे बता दीजिए एक्ट के अंदर किस जगह पे क्या कहाँ लिखी है ये लाइन? क्या पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मेरे मित्र ने पढ़ा है? उसके अंदर संसाधनों का जो बंटवारा हुआ 60 और 40% का, क्या हरियाणा को उस बंटवारे के मुताबिक
जो विधानसभा भवन है उसके अंदर स्थान मिल रहा था। दूसरी बात, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है। अगर आप कानून की बात करते हैं, तथ्यों की बात करते हैं, तो इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि चंडीगढ़ दोनों प्रदेशों की राजधानी है? तब आपको केवल पंजाब की बात क्यों याद आती है? जी। जब आप एक्ट की बात करते हैं तब आप ये क्यों भूल जाते हैं कि दोनों प्रदेशों की राजधानी है? तो मेरा केवल ये कहना है कि केवल अपने राजनीतिक मजबूरियों के वश झूठ ना बोले। थोड़ा नहीं, पर सच्चाई प्रवीण को जी समझें। एक ही लाइन है ना सबकी। पंजाब में आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखिए, सबकी एक ही लाइन है कि चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब के पास होना चाहिए। यह भी तर्क दिया जाता है कि जब भी स्टेट्स बंटी हैं, अलग अलग स्टेट्स, जो राजधानी है, जो मेन स्टेट्स थी जिसमें से बाकी के राज्य निकले, उसको दी गई है। तो ये पंजाब के साथ क्यों नहीं हुआ? नहीं शुक्ला जी, ऐसा है कि जो अभी आंध्र प्रदेश जब बंटवारा हुआ, तेलंगाना अलग हुआ, तो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश मिला, हैदराबाद मिला, ये भी तो तथ्य हमारे सामने है। देखिए ऐसे, ये मैं वही कह रहा हूं, ये कुतर्क है, ये तर्क नहीं है। कुतर्क करने का कोई लाभ नहीं है। कलेर जी थोड़ा इंतजार करें, खड़ियाल साहब रिएक्ट करना चाहोगे? इस तथ्य को समझना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एक बार ठीक है, उनका जवाब ले लेते हैं सर, जो आप जिक्र भी कर रहे हैं खड़ियाल जी। नंबर 1 पहला जवाब तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ है, ये कहते 1 साल लगा। 28 जून 2021 को हमने प्रपोजल भेजा था, वो कंसिडर भी हुआ सब कुछ, और उसके बाद ये फैसला आ रहा है। 1 साल हुआ ना, हमारे प्रपोजल 8 साल से पेंडिंग पड़े हैं और उसका रिस्पांस आना तो दूर की बात है, उसको कंसिडर तक नहीं किया जाता। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं, तो साहब मुझे नहीं पता कि भेदभाव होता क्या है। दूसरी बात, आपने कहा साहब सुन लीजिए, मैं आपके टाइम में बोला, आपके टाइम में लगातार एसवाईएल का पानी 1971 में पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने किया था, जब पंजाब एक स्टेक होल्डर है, पंजाब करके लोगों को बात समझ आएगी। 50 साल हो गए लगभग। जी प्लीज, प्रवीण जी एक बार कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। प्रवीण मेंटेन कीजिए, ये इसको लोकसभा मत बनाइए, झूठ मत ना बोलिए, बच्चों को पूरी तरह से चंडीगढ़ झूठ आप बोल रहे हैं। पंजाब का चंडीगढ़ पे हक है, नंबर 1 अगर है तो वो स्टेक होल्डर है। अगर पंजाब का चंडीगढ़ पे हक है तो वो स्टेक होल्डर है, और अगर चंडीगढ़ की जमीन पे कोई फेरबदल होता है तो पंजाब हैज टू बी कंसल्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए साहब, पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ लीजिए। मेरी सुन लीजिए एक बात, पंजाब अगर स्टेक होल्डर है तो पंजाब के साथ डिस्कशन डिलिब्रेशन होना जरूरी है, बिकॉज चंडीगढ़ पे पंजाब का हक है। आप इस चीज से इनकार करते हैं? पंजाब का अगर हक है चंडीगढ़ पे तो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कहा लिखा है, जो आपने पहले बोला था। अब अपनी बात से पलटिए मत, ये बताइए उसमें कहा लिखा है? पंजाब है, अगर पंजाब अपनी सुविधा के अनुसार से गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। एक एक करके सर प्लीज। अमेंडमेंट इज डन। गौरव जी, मैं ना दे टाइम से लगातार ठीक है, प्लीज अपनी गल कंप्लीट कर लो खड़ियाल साहब। मैं प्रवीण जी आपके पास आऊं। मैं प्रवीण जी आपके पास एक सवाल है जो इनसे पूछ लीजिए। पंजाब मैं कह रहा हूं इनसे लगातार चंडीगढ़ पे है या नहीं है? नंबर 1, अगर आप कहते हैं कि पंजाब का चंडीगढ़ पे हक बिल्कुल नहीं है तो आपकी आर्ग्यूमेंट जो है वो बिल्कुल इलॉजिकल। नहीं, खड़ियाल साहब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗढ़ पंजाब ਦਾ ਹੈ। बिल्कुल नहीं, पंजाब मैंने कभी इनकार किया? पंजाब मैंने कहा कि पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है। ये किस तरह का तथ्य दे रहे हैं आप शुक्ला जी? अरे आप मेरे टाइम नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूं सर, आपका सवाल आप यही पूछ रहे हैं ना सवाल, और क्या पूछ रहे हैं? लगातार बोलेंगे। एक सेकंड, देखिए अब दोनों बोलेंगे तो ना तो मेरा सवाल बीच में समझ आएगा। अगर स्टेक होल्डर को कंसल्ट किए बगैर कुछ भी होता है, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। कृषि कानून के वक्त आपने माफी मांगी थी और वापस लिए थे, इस बार फिर से वैसे करेंगे आप? चलो ठीक है, एक सेकंड आप दोनों होल्ड कीजिए। नहीं शुक्ला जी, मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा पहले। आप क्लियर कीजिए प्रवीण जी, आप क्लियर। एक सेकंड खड़ियाल साहब थोड़े होल्ड करो प्लीज, थोड़े होल्ड करो। प्रवीण जी आप अपनी बात रखिए। मेरा सवाल ये था जो आपका था, क्या आप इससे डिफरेंट सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने ये सवाल पूछा था कि आप ये पूछना चाहते हैं कि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है, क्या ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा हुआ है? मैं इसको और दुरुस्त कर देता हूं, मैं इसको और दुरुस्त कर रहा हूं सर, कि क्या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है कि केवल पंजाब का हक है? अब बेटर है? नहीं शुक्ला जी सुनिए, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं बात को। मैंने शुरुआती बात में ये कहा
कि चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है। पहली ठीक है, बात, जी। मैंने केवल ये पूछा इनसे कि ये जो बार बार एक बात कह रहे हैं कि विधानसभा भवन बनाने से पहले पंजाब से कंसल्ट करना चाहिए था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ऐसा लिखा है, इन्होंने शुरुआत में ये बोला था। तो मेरा सवाल ये था कि ये बता दीजिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कहां ये लिखा है। ये मेरा सवाल है, मैं नंबर इनको कोई मिसइंटरप्रेट नंबर नहीं एक, कीजिए। ठीक है, अखिलेश ये साहब बहुत आगे- इंतजार कर रहे अपनी बात हैं। को खड़ियाल जी बनाने 20 लगे। सेकंड मैं एक बस जवाब लूंगा, दें। ठीक एक है, सेकंड लूंगा। मेरी ना रिवाइंड करके देख लें। मैंने शुक्ला जी जो बोला था पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने ये सजेस्ट किया कि हरियाणा की राजधानी डिफरेंट होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपने जो खुद कहा, एडमिट किया कि हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब की भी राजधानी है, तो अगर चंडीगढ़ पे कोई फेरबदल होगा तो स्टेक होल्डर जो दूसरा है उसको भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा। ये कानून कहता है। और अगर आपको घुमा रहे, कौन सा कानून कहता है आपको बताओ मुझे, समझ आ कानून बता सकता। और दीजिए। दूसरी बात, जो आपने पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात की, आपको उसका भी बता दूं कि उसमें भी मैंडेटरी क्लॉज है कि इफ एन अमेंडमेंट इज टू बी डन ऑल द स्टेक होल्डर्स आर टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये साहब आपने पहले भाई फिर आप झूठ बोल रहे हो भाई, क्यों यहाँ पे दर्शकों को ये समझ रहे हो, उनको कुछ समझ नहीं है या कानून की चलिए जानकारी। थोड़ा सा होल्ड कीजिए, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं एक बार उनका भी रुक लूं। प्रवीण जी मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज